Bullet for inviting me and give me opportunity to share the word of God. मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई रोशन के लिए जिन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं यहाँ पे आके वचन प्रचार कर सकूँ. And I'm feeling so excited. और मैं एकदम प्रसन्न हूँ. Because I am amongst the children of God, the sons of God. क्योंकि मैं परमेश्वर के बच्चे के बीच में हूँ. And it's an honor to stand and preach the word of God after 8 years. 8 सालों के बाद ये सम्मान की बात है कि मुझे मौका मिला है प्रचार करने के लिए. So we'll not waste time and get into the word of God. तो हम वचन में जाएंगे इस समय. Yesterday night I was asking the Lord, give me the word. I don't know. Some people I know who are sitting here present, but some new faces for me. So I was asking the Lord, please speak to me. Give me the accurate word. What you want me to share. Because I want to share the heart of the Father to you. तो मैं परमेश्वर को कल रात पूछ रही थी क्योंकि बहुत सारे जो यहाँ पे आए वो नए हैं और मैं नहीं जानती. तो कल रात को मैं प्रार्थना कर रही थी और पूछ रही थी परमेश्वर से कि मुझे एक वचन दो आपके दिल में आपके बच्चों के लिए क्या है तो मुझे बता दो. But at 11:30 I was feeling very sleepy. और 11:30 बजे मुझे बहुत नींद आ रहा था. And I took the Bible. और मैं वचन थी. And Lord spoke to me few words. और परमेश्वर ने मुझे कुछ शब्द बोले. But trust me, I was feeling very sleepy. पर मुझ पर विश्वास करो मुझे बहुत नींद आ रहा था. Me to go and rest. और परमेश्वर ने कहा आराम करने के लिए सिस्टर को. And I said, I felt in my spirit I should go and just sleep. तो सिस्टर को लगा मुझे जाके सोना है. And I went but before sleeping. और सोने के पहले I just made a short prayer with the Lord. और सिस्टर ने एक छोटा सा प्रार्थना किया. So Lord, परमेश्वर morning I know you will tell me what I have to speak. सुबह में आप मुझे बताएंगे कि मुझे आपके लोगों के at sharp 6 o'clock. और 6 बजे सुबह The Lord woke me up. परमेश्वर ने मुझे उठाया. And at the moment I opened my eyes. और जिस क्षण मैंने अपनी आंखों को खोला He gave me 3 words. और 3 वचन दिए मुझे. Covenant, वाचा, sonship, बेटा होने का दर्जा, glory और महिमा. And I went to my hall. और मैं अपने हॉल रूम में गई. I took the Bible. मैंने वचन को लिया. He told me open the book. और उसने कहा किताब को खोल दो. He started downloading scriptures in my और परमेश्वर अपने वचनों को मेरे दिल में डालते गया. And the first thing the Lord, and I was so excited. और मैं इतनी प्रसन्न थी. Lord is so mindful about my sleep. और परमेश्वर हमारी नींद के बारे में इतना सोचता है. So the God who has created you and me, और परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बनाया, He is faithful and He is very concerned about each and every detail of your life. और बहुत ही वो हमारे बारे में बहुत सोचता है हर एक चीजों के बारे में, छोटी छोटी चीजों के बारे में. So I'm honored and privileged. और बहन कहती है कि उसे सम्मान मिला इस चीज के बारे To be में. a son of a most living God. एक बेटा है बेटी होना है परमेश्वर के लिए. So quickly I want to just give you some references. We're not able to go through, but I will share what 5 years back. 5 साल के पहले The revelation with God, opened my eyes to see. और जो प्रकटीकरण परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं देखूं. And that changed my life. और ये चीज बहन को बदल गई पूरी तरीके से. So the first thing, as the Lord spoke, a covenant. वाचा के बारे में. So you see Genesis 1, the covenant, Adam and Eve, when they were created by the and they were walking, they had a fellowship with the God, and they were walking in the glory. Okay, हम देखते हैं आदम और हवा के बारे में जो वाचा परमेश्वर ने उनको दिया और किस तरह वो परमेश्वर के साथ महिमा में चल रहे थे. They are communicating with the Father and then the presence of the Lord. वो परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहे, वार्तालाप कर रहे और परमेश्वर की उपस्थिति में. I felt the Satan was jealous. और मुझे लगा कि शैतान जलन कर रहा था. And he came. और वो आया. To destroy the communion with the Father and the Son. और वो आया इसलिए उस रिश्ते को तोड़ने के लिए जो पिता जो आदम हवा और परमेश्वर के साथ था. But Lord, परमेश्वर had a greater plan. बहुत बड़ा योजना था परमेश्वर का. I was asking what should I speak about covenant. और मैं पूछ रही थी परमेश्वर से कि मैं वाचा के बारे में क्या बताऊं. The Lord showed me a wedding ring.
और परमेश्वर ने बहन को एक शादी का रिंग दिखाया। What happens in the covenant? क्या होता है वाचे में? There's an exchange. एक अदला बदला होता है, अदली बदली होती है। Yeah, there's for example, parents and children, husband and wife. There's an exchange. और माता और बच्चे, पति और पत्नी, एक लेन देन होता है, अदली बदली होता है। exchange also with the government. I'm an Indian. I cannot say I'm a British or I'm an European. I'm an Indian. I'm exchange with the government also. I'm an Indian. The government. सरकार भी हम देखते हैं, सरकार में भी हम एक दूसरे का मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं अमेरिकन के नहीं हूँ, मैं so Lord had made a covenant with you before the foundations of the earth. और हम देखते हैं परमेश्वर ने आपके साथ एक वाचा बनाया है इस दुनिया के बुनियाद के होने के पहले। And as I said before, as I said before, the Satan tried to kill, steal and destroy. जो शैतान था उसने सोचा वो मारेगा, घात करेगा और चोरी करेगा। God sent His Son Jesus Christ. पर परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को भेजा। He sent His one Son. उसने अपने एकलौता पुत्र भेजा। To restore so many sons. ताकि वो बहुत सारी चीजों को फिर से अपने पास ला सके। And today when did you become a son? और जब हम एक बेटे बन गए, when the Lord revealed Himself to you and you accepted the Lord, that moment you had an exchange with the Father, with Christ, with the Father, Okay. Son, Holy Spirit, and now from that moment you became a son. Okay, sorry. अच्छा मैं कह रही थी कि okay. I said that when God sent His Son Jesus Christ, और जब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा for His peace and one son, परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र हमारे लिए भेजा ताकि उस एक बेटे के द्वारा बहुत सारे पुत्र आ जाए उसको। and He restored the sonship. और परमेश्वर ने फिर से जो हम उसके पुत्र थे पहले, हम फिर से उसने एक पुत्र होने का हमें वो दर्जा दिया। So today you are a son of a living God. तो आज हम परमेश्वर के पुत्र हैं, जिंदा परमेश्वर के पुत्र हैं। You are complete in Christ. हम मसीह में पूर्ण है, परिपूर्ण है। And why I say so? और हम ऐसे क्यों कह रहे हैं? Because the Word of God says, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है the Christ lives in you. मसीह आपके अंदर जीता है। He broke the Satan tried to destroy the covenant from the outer side. शैतान ने जो वाचा है उसे तोड़ने की कोशिश की बाहर से। But the Lord Himself sent His Son so that He could restore the sonship. और इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को भेजा ताकि फिर से हम वो रिश्ता कायम, परमेश्वर हमें फिर से अपने करीब ला सके और हम उसके बेटे कहला सके। So we look into Romans 8 verse 14, 15, 16 and 17. हम देखेंगे रोमियो का 8, 14, 15, 16 और 17। If someone has got it, can you just read that scripture? कोई पढ़ सकता है? रोमियो का 8, 14 से लेके 17 तक। लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम ए अब्बा, ए पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरना परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाए। Amen. Amen. So can someone read in English? For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children,
then heirs of God and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with him, that we may also be glorified together. Amen. So we are, as the words said, we are the sons of the living. The Holy Spirit lives in us. Jesus lives in you. पवित्र आत्मा हमारे अंदर जीता है, यीशु मसीह हमारे अंदर जीता है। So you are complete in Christ. तो हम परिपूर्ण हैं मसीह में। So everything what you need, और हर एक जो आपकी जरूरत है, you have an answer. उसका आपके पास जवाब है। Because you are a son of a living God. क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हो। The Father whom you serve, जिस पिता को आप सेवा करते हो, He is the God of the universe. Amen, वो सारी सृष्टि का परमेश्वर है। And what a privilege. और क्या हमें एक सौभाग्य है, या क्या सौभाग्य है that He dwells in us, He lives in us. कि वो हमारे अंदर जीता है। You feel good? क्या आपको अच्छा लग रहा है? Happy? Amen, क्या आप खुश है That Jesus chose you. कि यीशु मसीह ने आपको चुना है। You are not looking for Jesus. आप यीशु मसीह के लिए ढूंढ रहे थे, पर यीशु मसीह आपको देख रहा है। So Lord is saying, तो परमेश्वर कह रहा है, what is the role of my sons? कि आपका इवन आपके लिए क्या काम है। Sons are called, you can Genesis 1:28. उत्पत्ति का 1:20 खोलेंगे। Then God said, let the waters abound with an abundance of living creatures, and let birds fly above the earth across the face of the firmament of the heavens. उत्पत्ति का 1:28। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब वस्तुओं पर अधिकार रखो। So it says, the Lord said, you have to, your sons, you have to take dominion. एवं परमेश्वर ने हमें कहा कि हम बेटे हैं और हमें अधिकार लेना The है। sons has given authority. एवं हम उसके बेटे, तो हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है। God has given you authority. तो परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। Son has, you are called to have dominion. ओके, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, एवं बनाया है कि आप राज करें। And He's also called you to rule. एवं परमेश्वर ने आपको बनाया है कि आप राज करें। So that's why He says you are the head and not the tail. इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम सर हो और दुम नहीं। So as sons, और बेटे होने के नाते you are also called to fellowship with the Father with intimacy. और बेटे होने के नाते आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता कायम करें। You see, when Jesus was baptized, when Jesus was जब baptized, यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ and there was open heavens, और स्वर्ग खुला था, and you heard there was a voice from the above. ओके, स्वर्ग से एक आवाज आ रही थी, This is my beloved son, and in whom I am well pleased. ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं बहुत प्रसन्न हूँ। So when Jesus accepted the Lord, जब यीशु मसीह को आपने स्वीकार किया, it was same. The Father said the same thing about you. एमेन, परमेश्वर पिता ने वही चीज कहा जो यीशु मसीह को कहा कि तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। हालेलुया। He is pleased that you are His son. एमेन, परमेश्वर प्रसन्न है कि आप उसके बेटे हो। He has great honor that you are His son. परमेश्वर की बहुत बड़ी सम्मान है ये चीज कि आप उसके पुत्र हो। Whatever the Father has, और जो भी परमेश्वर का है, it belongs to you. सब कुछ आपका भी है। Imagine सोचो, if Ambani comes अगर अंबानी आता है and tells you, और आपको कहता है you are my heir. ओके, आप उसके पुत्र हो, आप उसके वंश हो, वारिस हो। Okay? You'll jump. आप कूदोगे, खुश हो जाएंगे, हाँ कि नहीं? But I'm telling you, पर हम कह रहे हैं आपसे, our God is greater and bigger than Ambani. आमीन, हमारा परमेश्वर अंबानी से भी बड़ा और महान He है। doesn't have the peace what you have.
जो शांति आपके पास है वो अंबानी के पास He नहीं doesn't have है। joy that you have. जो आनंद आपके पास है वो उसके पास नहीं है। He doesn't have the authority when you speak, mountains will move. आमीन। जो अधिकार आपके पास है कि आप पहाड़ को बोले और पहाड़ हट जाएगा, वो अधिकार उसके पास नहीं है। The Lord, it's a privilege that to be sons of God. आमीन। ये सौभाग्य है हमें कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। And God has called you for a divine plan and purpose. आमीन। परमेश्वर ने हमें आमीन एक स्वर्गीय योजना के लिए बुलाया है। आमीन। And we carry the name of Jesus. और हम यीशु के नाम को हमारे अंदर ले चलते And what हैं। is his name? और उसका नाम क्या है? 3 words. 3 शब्द। C ओके। C C for character. C का मतलब कैरेक्टर, मतलब स्वभाव। A for authority. A इसका मतलब अथॉरिटी, अधिकार। And R is reputation. आमीन। R का मतलब रेपुटेशन। We carry the name of Jesus. हम यीशु मसीह के नाम को हमारे अंदर लेते हैं। The Father is in me. पिता हमारे अंदर है I am in the Father. और मैं पिता में हूँ। So whatever I speak or whatever I think or whatever I do, it reflects my Father. जो भी मैं सोचती हूँ, जो भी मैं बोलती हूँ, जो भी मैं देखती हूँ, वो मेरे पिता परमेश्वर की परछाई So दिखाता as a है। son, we have a greater responsibility. तो एक बेटे होने के नाते हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। For example, उदाहरण के तौर पे if your parents and children, if children, misbehave, they get a bad report, how many parents rejoice? इमें कितने माता पिता को अच्छे लगते हैं जब उन्हें एक बैड रिपोर्ट मिलता है कि आपका बच्चे अच्छे नहीं है या ये या वो गलत चीज। कितने माता पिताओं को अच्छा लगता है। I'm sure parents want to face the principal also. आमीन। हम नहीं चाहते हैं कि हम जो प्रिंसिपल है, स्कूल के प्रिंसिपल है, आमीन, उन्हें उनके ऑफिस में कभी जाए। But God, how much more, we take care of our children, you ensure that they walk in the character, our parenting should be good, everything, we ensure that the children are complete disciplined. इवन हम माता पिता होने के नाते हम कितने अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं कि वो सही मार्ग में चले, सही दिशा में चले। Because their name is attached to your name. क्योंकि बच्चों का नाम हमारा नाम से जुड़ा हुआ है। Surname will get spoiled. हमारा नाम खराब हो And more than जाएगा। that, first the father's name gets spoiled. और उसके पहले पिता का नाम जो है वो खराब होता है। So whom you belong to? तो आप किसके हैं? We are sons of the heavenly Father. हम परमेश्वर के पुत्र हैं जो स्वर्ग में रहता And we है। carry his precious name. और हम उसके नाम को ले चलते, उसका नाम हमारे नाम से जुड़ा हुआ है। So sons carry, तो जो बेटे हैं we carry, हम we carry. Okay. we carry his name. हम उसके नाम को हमारे साथ ले And above चलते हैं। every other name. हर नाम से भी ऊंचा यीशु का नाम, वो नाम को हम ले So चलते it हैं। is son's responsibility तो एक बेटे की जिम्मेदारी होता है to walk with the Father. कि हम पिता के साथ चलें। So when we were I was a baby Christian. तो हम जस्ट नए मसीह में आए थे, यस, I used to love praise and worship songs and music. आमीन। तो जब सिस्टर मसीह में जब नहीं आई थी तो उसे स्तुति आराधना का गाना बहुत पसंद था। I used to love to be first in the Sunday just to hear, and there were some favorite songs. I had some favorite songs. ओके, सिस्टर को जो स्तुति आराधना के कुछ गाने थे जो बहुत अच्छे लगते थे, तो सबके आने से पहले वो आती थी। When the preacher used to preach, और जब प्रचार करता था, I should take what is good for me. और जो सिस्टर के लिए अच्छा था वो लेती थी, Rest I don't want to listen. और बाकी जो है नहीं सुनना है उनको। Okay, so it was more of I was feeling that I was performing for God. Oh, whatever I'm doing, God is very excited and happy. आमीन। सिस्टर को लगता था जो भी कार्य वो कर रही थी परमेश्वर से बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था। And the day I used to miss church, और जिस दिन सिस्टर जो है वो कलीसिया में नहीं जाती थी, I used to feel सिस्टर को लगता था God is standing with a whip. परमेश्वर एक डंडा के साथ, छड़ी के साथ खड़ा है। He is going to whack me now. अब वो सिस्टर को मारने वाले छड़ी के साथ। So I used to repent many times. और सिस्टर बहुत बार पश्चाताप करती थी। So this was a lie of the enemy. और ये शैतान का बहुत बड़ा झूठ था। When the Lord revealed पर जब परमेश्वर ने प्रकटीकरण दी सिस्टर covenant को, and sonship, उसके वाचा के बारे में और उसके हम जो बेटे उसके उस चीज के बारे में जब सिस्टर को प्रकटीकरण दिया, I was free. सिस्टर मुक्त हो गई। Like when we were worshiping, जब हम यहाँ पे आराधना कर रहे थे, so we speak the spirit of freedom. इवन हम आजादी की आत्मा को गा रहे थे। So when you know the truth, जब आप सच्चाई को जानते हो, truth sets you free. सच्चाई आपको मुक्त करता है। So now तो अभी you are आप authorized son.
Amen, आप अधिकार किए हुए बेटे हो and you have full inheritance. Heavenly Father, whatever, imagine the inheritance of the Heavenly Father belongs to you. जो भी परमेश्वर का है वो सब कुछ आपका है क्योंकि आप उसके बेटे हो। So now you are a rich son. तो आप एक अमीर बेटे हो, You have honor आपको सम्मान है because you are carrying the name of Jesus, क्योंकि आप यीशु मसीह का नाम आपके नाम the से Prince जुड़ा of हुआ है, heaven. जो राजकुमार है स्वर्ग का। And as I said, God has called you और परमेश्वर ने आपको बुलाया for है a divine plan and purpose. एक स्वर्गीय योजना के लिए, But there's one primary purpose: और एक बहुत बड़ा उससे भी बढ़कर एक योजना है, to display His glory. उसकी महिमा को प्रकट करना। So, because you're the son, और क्योंकि आप बेटे हो you carry the name of the Son. और क्योंकि आप परमेश्वर के नाम को लेके चलते हो, Every time you use your action, you speak, you talk, you walk, everything reflects the Father. जब आप बोलते हो, जब आप देखते हो, जब आप सोचते हो, हर एक कार्य जो आप करते हो वो परमेश्वर को दिखलाता है। So the glory of the Lord is displayed. परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया है। Out of darkness, और अंधकार से He brought you into His marvelous light परमेश्वर ने आपको उसकी प्रकाश और उजाला में लाया है, to display His glory उसकी महिमा को प्रकट करने के in लिए। such a way इस तरह से Satan is already defeated, has no power over you. शैतान को आपके पर कोई भी सामर्थ्य है ही नहीं, वो मर चुका है, वो नाश हो चुका है। And nothing can separate you. और कुछ भी आप Nothing can separate you from the love of the Father. और आपको परमेश्वर से के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता है, Because the Lord Himself has made a covenant with you. क्योंकि परमेश्वर खुद उसने आपसे एक वाचा बनाया है। He says He will never leave you, nor forsake you. परमेश्वर कहता है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी आपको त्यागेगा। We'll go to Malachi 4:6. हम मलाकी के 4:16 में जाएंगे। मलाकी 4:16, मलाकी 4:6। मलाकी 4:6। वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकार पृथ्वी का सत्यानाश करूं। And He will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. Amen. So it says the Lord Father, the Heavenly Father, जो स्वर्गीय पिता है, is turning His heart towards His children, वो अपने हमारे दिलों को उसकी तरफ खींच रहा है। and He wants His sons to manifest. और वो चाहता है कि उसके पुत्र जो है वो प्रकट हो उसकी महिमा के द्वारा। You are full of glory आप पूरी तरीके से महिमा से भर चुके हैं because Jesus is in you. क्योंकि यीशु मसीह आपके अंदर है। So how will you move into the into the glory realm? तो आप किस तरह परमेश्वर की महिमा के स्तर में आप जाएंगे? As I mentioned earlier, there's a covenant. जैसे सिस्टर ने पहले कहा कि परमेश्वर ने आपसे एक वाचा बांधा है, So Lord is expecting और परमेश्वर ये एक्सपेक्ट कर रहा है the sons कि बेटे जो है, to spend time with the Father, परमेश्वर ये चाहता है कि हम एक बेटे होने के नाते परमेश्वर के साथ समय the बिताएं act of worshiping Him, और उसकी आराधना करें, so you can hear Him ताकि आप उसको सुन सके 24/7, 24 घंटे 7 दिन। so that no enemy cannot come and quarter any plan and purpose what He has for you. तो शैतान जो भी योजना आपके खिलाफ करता है वो योजना आप पर प्रबल कभी हो नहीं सकता। So the Lord is I believe the Ecclesiastes 3, there's a time for 3:11. There's a time for everything. और हम देखते हैं एक्लीसियास्टिस की किताब में लिखा है यहाँ पे 3:11 में कि हर चीज के लिए समय है। And everything, as natural realm we are entered winters. Amen? हम देखते हैं कि इस स्तर में जो स्वाभाविक अभी मौसम जो है ठंडी का मौसम है, But even in supernatural, we have entered a new season. Amen? इसी तरह Amen? जो अलौकिक स्तर में है हम एक नए मौसम में आ चुके हैं, Because God is God of time and seasons. कि जो परमेश्वर है वो समय का और मौसम का परमेश्वर है, And you are His son. और आप उसके बेटे हो। So God wants to give
but blessings, blessings after blessings. तो परमेश्वर चाहता है आपको बहुतायत का आशीष दे, Because whatever you need is already in you. कि जो भी आपकी जरूरत है वो आपके अंदर है। And why God wants to give you? पर क्यों परमेश्वर आपको देना चाहता है? Because to expand His kingdom. ताकि आपके द्वारा परमेश्वर अपने राज को बढ़ाए। But where is the kingdom? और परमेश्वर का राज कहाँ पे है? The kingdom is in you. परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है, Christ is in you. क्योंकि मसीह यीशु मसीह आपके अंदर है। Christ and you are one. आप और यीशु मसीह एक हो। So you have to walk with the Lord. I mean, there should be a covenant, companionship. तो आपको यीशु मसीह के साथ होना है, एक वाचा होना है यीशु मसीह के साथ। Many of you who have great and mighty calls over their life. यहाँ पे जो लोग बैठे, सिस्टर कह रही है कि आपके ऊपर मान बुलाहट है, But it's our responsibility ये हमारी जिम्मेदारी है to not spoil the name of the Father. कि हम परमेश्वर पिता के नाम को खराब न करें। That He expects His sons कि वो चाहता है जो उसके बेटे हैं to walk in His holiness and His righteousness. कि हम उसके पवित्रता में और धार्मिकता में चले। But I knew I was a son of God. I was a child of God. पर सिस्टर कहती मैं जानती हूँ कि मैं परमेश्वर की पुत्री हूँ, उसकी बेटी हूँ। But it's not that every time I walked in holiness and righteousness. It's not that every time I walked in holiness and righteousness. पर ऐसा नहीं कि हर पल हर समय में पवित्रता और धार्मिकता में चलती हूँ। At times there were crooked paths. कुछ क्षण ऐसे थे कि मैं अलग मार्ग में जाती I walked in flesh. हूँ। मैं कभी शरीर में चली हूँ I messed up my life. और अपने जीवन को गड़बड़ कर दिया। But the Lord, पर परमेश्वर ने, the Holy Spirit, पवित्र आत्मा ने, directs our path. वो हमारे मार्ग को सरल करता है। Step by step, वो हर पल हर क्षण हमें दिखाता है कैसे हमें चलना He है gives you right direction. और वो आपको बताता है कि इस जगह इस मार्ग पे चलो। But every time the key to walk in with the intimacy with the Father, जो चाबी है इमें परमेश्वर के साथ एक रिश्ता एक होना, ओके, वो चाबी ये है that every time the Holy Spirit convicted, he said, the Bible is a mirror. He speaks to us whenever anything something wrong we do, our actions or what we speak, attitude. There's a check-in. The Holy Spirit says no. तो परमेश्वर का जो वचन है इमें वो एक आईना है। हालेलुया। जब भी हम कोई गलत करते हैं तो हमारे विवेक में परमेश्वर बात को, वो वचन को डाल देता है। And at that time, और उस समय में if I say I just choose to be stubborn, ओके, अगर हम चुनते हैं कि मैं जिद्दी बनूं, I block the blessings over my life. तो मैं परमेश्वर की जो आशीष मेरे जीवन में आना है उस चीज को मैं खुद रुकावट बनती हूँ। I personally experienced that. और सिस्टर ने और मैंने भी बहुत बार ऐसा पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। So what we see in the Bible, हम वचन में देखते हैं all the mighty servants of God, जो महान परमेश्वर के जो सेवक हैं, right from Abraham, अब्राहम से लेके from Paul, John, all the new disciples, हम पौलुस को देखते हैं, यूहन्ना का देखते हैं और सारे they're लोग quick to obey. इवन वो क्षण में परमेश्वर की वो वचन को सुनते थे। So I decided, तो मैंने सोचा कि whenever the Lord speaks to me, जब भी परमेश्वर मुझसे बातें करता है, corrects me, ओके, जब भी परमेश्वर मुझे डांटता है, I will humble myself, मैं अपने आप को नम्र करूंगी, come in line with, bring my life before the word of God, जो परमेश्वर कहता है उस चीज को बातों को मैं करूंगी, and allow the Father to change me. और जो मैं पिता को अनुमति दूंगी कि वो मेरे जीवन में बदलाव ला सके। So the Holy Spirit, removes every cover which is not unwanted things. तो पवित्र आत्मा जो है, जो भी मेल मेरे अंदर है उस मेल को धुलाता है, धोता है, निकालता है जो भी चीज मेरे अंदर सही नहीं है। So it's the same manner, उसी तरह all the keys हर वो चाबी of the kingdom परमेश्वर के are राज्य given की to the चाबी sons, उसके बेटे को दिया गया है, but we have to use them. हाँ, पर हमें उसे इस्तेमाल करना है। So the keys जो चाबी जो है is of wisdom, बुद्धि है, understanding, समझ, knowledge, ज्ञान, counsel. सलाह लेना। So all the gifts and the keys जो वरदान और जो चाबियां है already given to you. आपको दे चुके हैं परमेश्वर ने। So if you ask, Lord, what should I do with this problem? परमेश्वर, ये जो बड़ा सा पहाड़ मेरे जीवन में आया है, इस पहाड़ का मैं क्या करूँ, इस समस्या का मैं क्या करूँ? So you
might not get any answer. और शायद आपको अब तक जवाब नहीं मिल रहा And you'll है be frustrated. और आपको गुस्सा आ रहा है Because the answer is in you. क्योंकि जवाब आपके अंदर है। Christ lives in you. मसीह आपके अंदर रहता है। Holy Spirit पवित्र आत्मा, is, you take a deep breath, आप एकदम गहरी सांस लो। is as close to you. जिस तरह आपका सांस है उतना करीब पवित्र So आत्मा आपके अंदर Holy है। Spirit will convict you. और पवित्र आत्मा आपके विवेक को छुएगा And many times He convicts you. और बहुत बार आपके विवेक में आप वो बातों को डालता है कि But- आप गलत कर रहे हो But या ये सही but है। we choose to go from our mind and flesh. पर हम चुनते हैं कि हमें क्या करना है, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को And सुनते हैं। that is the entry gate where the enemy can come and take you around the bush. और वही वो क्षण है जहाँ पे शैतान को हम उससे वो जगह दरवाजा खोल देते हैं कि वो आके हम पर आक्रमण कर सके। But the time has come. पर समय आ चुका है, We cannot just sit like that. हम ऐसे ही बैठ नहीं सकते हैं। The son should arise. परमेश्वर के बेटे को अभी उठ खड़ा होना The है son should take the position और परमेश्वर के बेटे को उठ खड़ा to होकर expand his kingdom. परमेश्वर का राज को फैलाना है। Now, as you seek his kingdom, और जैसे आप उसके राज को खोजते his हो, righteousness, उसके धार्मिकता को खोजते हो, all things are going to be added unto you. सब कुछ जो आप चाहते हैं सब कुछ आपको दिया जाएगा। Because the father and the son, you are one. क्योंकि आप पुत्र है, वो पिता है, आप दोनों एक हो, परमेश्वर और आप Even एक if हो। at times you have to ask, you have to pray, God will give you. At times will come और ऐसा समय आने वाला है when you might not even ask for it. ओके, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं, But God will provide it. प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं, परमेश्वर खुद आपको देगा। Because you are not a natural sons, क्योंकि आपके माता पिता की जैसा रिश्ता है वो रिश्ता नहीं है, but you are supernatural sons. आप अलौकिक बेटे हैं, आप स्वाभाविक बेटे नहीं हो, अलौकिक बेटे हो। So your provisions comes from the heavenly Father. तो आपका जो भी जरूरत है आपके स्वर्गीय पिता से आता है। Your light bills are paid by the heavenly Father. जो आपके लाइट बिल है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है एमएन, वो परमेश्वर पिता भरता है। Your salary is also coming from the heavenly Father. जो भी आपका सैलरी या महीने के पगार है वो भी परमेश्वर आपको देगा। Even if you lost some job, if there is a loss in your family, loss of finances, anything, God is going to restore it. Amen, Heavenly amen, Father, God is hallelujah. going to give the supernatural. इवन अगर आपने आपका जॉब को खोया है या आपके पैसे गए हैं, जो भी हो गया आपके साथ, सब कुछ परमेश्वर आपको देने वाला है। Once you are a son, क्योंकि आप पहले एक बेटे थे। you are always a son. ओके, आप एक बेटे हो और हमेशा आप एक बेटे ही रहेंगे। No one can take this sonship away from you. एवं कोई भी एवं जो रिश्ता आपका परमेश्वर के साथ एक बेटे का रिश्ता कोई छीन नहीं सकता है। Every fruit of the Spirit जो हर एक फल है पवित्र आत्मा का is in you. वो आपके अंदर है। So if anger triggers, अगर गुस्सा आता है आपको, you need to use self-control. आपको संयम को इस्तेमाल करना है। थैंक यू ब्रदर। if I'm getting thoughts like oh I feel like that person spoiled my name, and if that person comes in front of me, I'm going to show him. ओके, अगर ऐसा आपके अंदर एक सोच आता है कि इसने मेरा नाम को खराब किया, इसने मेरे नाम को बदनाम किया, अब मैं रुकती हूँ, अब इसको देखने That वाली time you हूँ। need to love him. उस समय में आपको प्रेम दिखाना है। हालेलुया। It is not our ability. आमीन। ये हमारी खुद की क्षमता के द्वारा नहीं हो सकता है। God is that's why made a covenant with you, इसलिए परमेश्वर ने आपके साथ एक वाचा बनाया है and He has given you the grace और परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है to forgive anyone. कि आप किसी को भी क्षमा कर सकते हो। And because you forgive, और क्योंकि आप क्षमा करने वाले हो, the river of life of God will flow through you to the others. आमीन। जो परमेश्वर का जीवन का जल है, नदी का जल है, परमेश्वर से आपके द्वारा दूसरे लोगों तक बहने So वाला है। all these small blocks, ये जो छोटे छोटे रुकावटें जो है, hatred, नफरत, jealousy, चलनपन, comparison, competitiveness, एक दूसरे को कहना कि ये मेरे से बेहतर है, वो स्वभाव, so that pride, घमंड, the Holy Spirit deals with it. पवित्र आत्मा उस सारी चीजों से, आमीन। And the Lord is saying, और परमेश्वर कह रहा है, let go and leave the past. आमीन। आपका जो कल है, आमीन, जो कल था उस चीज को छोड़ दो। Forgive all your enemies. सारे जो आपके लोगों ने जो आपको दुख पहुंचाया है या कष्ट दिया है, उनको भूल जाओ और क्षमा करो। It was not them, क्योंकि वो आपके जो लोगों ने आपको चोट पहुंचाई वो लोग नहीं थे। because it was the darkness, the power of darkness were against you. जो शैतानी हरकतें, जो शैतान काला शैतान जो है वो आपके पीछे थे। Because we are not fighting flesh and blood. क्योंकि हम मांस लहू से नहीं लड़ रहे हैं। Brothers and sisters, मेरे भाई और मेरी बहन, Jesus really loves you. यीशु मसीह
सचमुच आपसे बहुत प्यार He करता has है। expressed His love to you. उसने अपने प्यार को बयान किया He है। restored you. You're a son, आप एक बेटे हो, परमेश्वर के बेटे हो। and you are the topmost celebrity today on the universe. आमेन। और आप जो हम देखते हैं हॉलीवुड बॉलीवुड के जो लोग हैं उससे भी बड़े आप हो। हालेलुया। Because you carry the name which is so precious, the name of Jesus. आमेन, क्योंकि आप वो नाम को लेते हो जिसका नाम है यीशु मसीह, जो सब नाम से ऊंचा है। But the Lord is saying, और परमेश्वर कह रहा है we need to take the responsibility हमें जिम्मेदारी लेना है of the car, car. जो कार का ओके CAR Okay, the character, अथॉरिटी, the authority, adhikar, अधिकार, reputation. सम्मान। When I walk, जब मैं चलती हूँ I want to see that people should see my Father. तो मैं चाहती हूँ कि लोग जो है परमेश्वर पिता को मेरे अंदर देखे। So when you talk, जब आप बोलते हो people can hear Jesus. तो जो लोग जो सुनते हैं इवन वो यीशु मसीह के शब्द को सुने। So what is going to happen? There will be miracles, signs and wonders then and there. तो उसके द्वारा क्या होगा? उसके द्वारा चिन्ह चमत्कार इवन होने वाले हैं। Because the glory is in you, God has given you the light to manifest. इवन जो महिमा आपके अंदर है वो महिमा आपके द्वारा कार्यशील होने वाला ही है। You are created for this time. और परमेश्वर ने आपकी रचना इस समय के लिए किया है। First display your glory in your own personal life. आमीन, कि आप परमेश्वर उसकी महिमा को पहले आपके जीवन में कार्य करें। Display your glory in your marriage. आपकी शादीशुदा जिंदगी में परमेश्वर की महिमा कार्य करे। Display your glory in your parenting. आमीन, जब अपने बच्चों के लिए वो महिमा कार्य करे। Display your glory in your fellowship where you meet. आमीन, जिस कलीसिया में आप जाते हो परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा प्रकट हो। Love one another. एक दूसरे से प्रेम करो। God's love is so powerful. परमेश्वर का प्रेम इतना सामर्थ्यवान है That His love defeated Satan. कि परमेश्वर का प्रेम ने शैतान को मात दिया। You know, some years back, बहुत साल पहले I felt, सिस्टर को लगा there were some people in my ऐसे- the thorn in the flesh in my ऐसे life. कुछ लोग थे सिस्टर के जीवन में I felt I will never be able to forgive them. और बहन को लगा कि सिस्टर कभी उसको नहीं क्षमा नहीं I कर was पाएगी। walking with the word, I was praising, worshipping, सिस्टर वो सब कुछ कर रही थी जो हर एक विश्वासी करता है। I'm reading the word, वचन पढ़ती थी, प्रार्थना करती थी, स्तुति slowly आराधना growing. You करती can थी say Lord is teaching His ways. और परमेश्वर अपने मार्गों को सिखा रहा था सिस्टर को। But there were 3 people. God, the Holy Spirit was asking me, और 3 ऐसे लोग थे जो परमेश्वर पूछ रहा था forgive, कि उन्हें कह रहा था कि उन तीनों को तुम क्षमा करो, let go. छोड़ दो उन लोगों को। It was not possible. और सिस्टर को हो नहीं रहा था, संभव नहीं हो रहा था। When the Lord opened my eyes, और जब परमेश्वर ने सिस्टर की बहन की आंखों को खोल दिया that it's not your ability. कि आप ये सिस्टर का क्षमता नहीं है, You are able to forgive. तुम क्षमा नहीं कर सकते हो, It is I have given you grace to forgive. पर मैंने तुझे मेरी अनुग्रह दिया है उन लोगों को क्षमा करने के And the लिए। Lord said, if I have forgiven you, अगर मैंने तुम्हें क्षमा किया है, how much time it takes for you to forgive that person? कितना समय लगता है तुम्हें उन लोगों को क्षमा करने के Because Lord लिए। opened my eyes to see और परमेश्वर ने सिस्टर की आंखों को खोल दिया ये देखने के लिए that person whom I'm hated towards to. और जो लोग जिसे सिस्टर नफरत करती थी, If I had just spoken loving and kindness words to them, अगर सिस्टर ने प्रेम भरे बातें बोल दिए होते they would have entered the kingdom of God. वो परमेश्वर के राज में आते So थे। I became a block for my own blessings. इवन तो सिस्टर कह रही कि वो अपने ही आशीष के लिए एक रुकावट बन And I गई should get frustrated और गुस्सा आता था why God is not using me for His purpose. और क्यों परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहा था उसके राज के लिए। Small things, Lord deals with you first. ये परमेश्वर छोटी छोटी बातों को पहला देखेगा आपके जीवन And में allow the Holy Spirit to do this, to do the work. और पवित्र आत्मा को इजाजत दो कि वो आपके अंदर काम करे। So Lord is saying to you today, और परमेश्वर आपको कह रहा है the time has come, एक ऐसा समय आ चुका है my sons to take right position with the word of God एवं कि आप परमेश्वर के वचन से एक हो जाए and spend time with the word of God. अपने स्थान बनाओ और वचन के साथ समय बिताओ। Worship with the Father like never before. इस तरह परमेश्वर पिता की आराधना करो कि आपने अपनी जिंदगी में कभी भी पिता परमेश्वर की ऐसी आराधना नहीं किया। You know, I just want to once before this when I was very Christian, I used to worship the Lord. जब सिस्टर मसीह में जस्ट आई थी, आमेन, वो जस्ट आई थी और परमेश्वर I की used to आराधना worship करती the थी। Lord only when
were one of my favorite songs. ओके, सिस्टर की कुछ फेवरेट आराधना के गाने थे, उन गानों पर ही सिस्टर आराधना करती थी। And I used to feel और सिस्टर को लगता था only those songs are anointed. सिर्फ वो ही गाना अभिषेक किए हुए हैं। But Lord, thank the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद He देती opened हूँ। my eyes to see. हिम्मत परमेश्वर ने सिस्टर की आंखों को खोल दिया देखने के लिए। In Isaiah 61, यशाया का 61 में, the Spirit of the Sovereign Lord, जो पवित्र the Spirit of the Sovereign is upon me, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर and है He has anointed me. और उसने मुझे अभिषेक किया है। That moment, उस क्षण the Holy Spirit, the Lord spoke to me. जब मैंने इस वचन को जाना, उस क्षण पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें When I की। have anointed you, जब मैंने तुझे अभिषेक किया है and when you sing the song, और जब तुम गीत गाओगे, it is acceptable worship to the Father. तो ये जो गीत तुम गाने वाले हो, ये मैं स्वीकार करता हूँ। So, it was. So I realized और मैं ये समझी that our worship हमारी जो आराधना है is a response to our love to the Father. क्योंकि जब हम आराधना करते हैं, हम परमेश्वर को हमारे प्यार दिखाते हैं। आमीन। पिता परमेश्वर को। God loved so much. परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्यार किया। He has given everything already to you. उसने अपना सब कुछ आपको दिया है। Is that we have to use the keys and operate. आमीन। हमें सिर्फ चाबियों को इस्तेमाल करके कार्य करना है। If you want blessings, अगर आपको आशीष चाहिए, they are in you. वो आपके अंदर है। If you want healing, आपको चंगाई it चाहिए, is in you. वो आपके अंदर You want है। deliverance, आपको छुटकारा it is चाहिए, in you. वो आपके अंदर है। You want financial breakthrough, आमीन। आपको आर्थिक आशीष it चाहिए, is already in you. वो आपके अंदर है। Because Christ is living, the Holy Spirit will bring you to the right track. तो पवित्र आत्मा सही मार्ग पे लाएगा। Because God desires to see His sons prosper. क्योंकि परमेश्वर का ये इच्छा है, आमीन, ये इच्छा है कि वो देखे कि अपने जो मेरे बेटे जो है, आमीन, वो सफलता पाए। Because when His sons they rise up and they grow, क्योंकि जब वो देखता है कि मेरे बच्चे, मेरे जो बेटे हैं, आमीन, वो उठ खड़े होते और वो बढ़ते हैं, all the glory goes to the Father, सारी महिमा परमेश्वर पिता को मिलता and है His name is glorified. और उसका नाम को महिमा मिलता So है। you are called for a divine plan and purpose. आमीन। तो परमेश्वर ने आपको एक स्वर्गीय योजना से बुलाया है। Lord will reveal many plans and many plans and purpose. बहुत सारे योजना है, But a primary purpose बट सबसे बढ़कर जो योजना है, to display your glory जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना है। in whatever way you can. जो भी चीजों में आप परमेश्वर की महिमा को While cooking, प्रकट कर सकते हैं। you display your glory. His जब आप glory. खाना बनाते हो, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा When को, you're feeding your children, you are displaying His glory. जब आप बच्चे को संभालते हो, आप परमेश्वर की महिमा को प्रकट When करते you're हो। submitting your husband to display His glory. जब आप अपने पति को अधीन होते हो, तब आप परमेश्वर की महिमा को When you प्रकट करते respect हो। your authorities and elders and love them, then you display His glory. जब आप आपके बड़े उन्हें सम्मान देते हो, इमेज तब परमेश्वर की आप महिमा को प्रकट करते So if हो। you see, in short, the Lord is only given the greatest commandment was love. एवं सबसे बड़ा जो परमेश्वर ने हमें कमांडमेंट आज्ञा जो दिया है, वो प्रेम का आज्ञा है। And प्रेम He करना एक दूसरे expects the से, love to flow from your heart to others. और वो ये चाहता है कि उसका प्यार आपके हृदय से दूसरे के हृदय तक पहुंचे। So the Lord is saying, जो परमेश्वर कह रहा है, take your positions. अपना स्थान लो। God is so, He's so jealous about you. He wants to see you prosperous. He wants to see you blessed. Because His name is attached with your name. एवं परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर बहुत जलन करता है आपसे और चाहता है कि आप यशस्वी हो। एवं आप हर चीज में सफलता पाइए। And God doesn't want you to waste. No, there's no time to waste. और अभी कोई भी समय नहीं है बर्बाद करने के लिए। Get back to the heart of worship. फिर से अपने हृदय को परमेश्वर की आराधना की तरफ Surrender लो। everything which is in your life you are troubled about. एवं जो भी चीज जिससे आपको संकट मिला है, जो भी चीज से आप हर एक चीज परमेश्वर को सौंप दो। Open your heart to the Father. अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल दो, Father loves you so much. क्योंकि पिता परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। He wants to fulfill your desires of your heart. आपके दिल की इच्छा जो कोई नहीं जानता है, वो But इच्छाओं को पूरा करना what are the चाहता है। blockages? पर वो क्या है? वो रुकावटें, For unforgiveness, अक्षमा, jealousy, जलन, competitiveness. एक से बेहतर होना। You are a special chosen sons.
आप नियुक्त किए हुए बहुत ही खास बच्चे हो परमेश्वर के, anointed ones. अभिषेक किए हुए बच्चे हो। There is no comparison. आप तुलना नहीं कर सकते हो। You all are special in His hand. आप एक एक जन जो यहाँ पे बैठे परमेश्वर के लिए आप बहुत ही खास हो। And He has already a good plan and a plan to prosper you and have a good purpose for your life. और परमेश्वर ने आपके लिए बड़ा योजना रखा है और वो योजना है कि आप सफल हो। But He wants to come back to the intimacy with the Father. और वो चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ एक हो, एक रिश्ता में हो। Spend time worshiping Him. उसकी उपस्थिति में समय बिताओ, उसकी आराधना करो। Thanksgiving is the most powerful prayer. जो धन्यवाद हम देते हैं वो बहुत ही सामर्थ्यशाली प्रार्थना है। Thank Him for all the days of your life, right from even you can say. हर एक बातों के लिए, हर एक चीजों के लिए तुम धन्यवाद दो। Right from your some had parents, some didn't have parents. Some childhood was not good. Everybody's come from different background. Everybody's gone their own ups and downs. इमेन हर एक जो यहाँ पे बैठे अलग अलग लोग हैं और आपने आपके कल में इमेन आपके पास में अलग अलग चीज से गुजरे हुए हैं। इमेन किसके माता पिता है, किसके नहीं है, पर जो भी आपका जीवन हो इमेन हर एक चीज के लिए परमेश्वर को आप धन्यवाद दो। Because Lord has chosen you before the foundations of the earth. क्योंकि ये जो धरती के होने के पहले, उसके होने के पहले परमेश्वर ने आपको चुना है। I didn't even want to hear about Jesus. When someone gave me gospel, I was not interested. इवन जब सिस्टर को किसने आके सुसमाचार दिया तो सिस्टर को इंटरेस्ट नहीं था तभी। But I'm thankful. इवन पर आज सिस्टर कहती कि मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। The Lord came in searching for me. क्योंकि परमेश्वर सिस्टर को खोजने के लिए आया। The Lord came to searching for you. इवन परमेश्वर आया आपके पास, खोजते खोजते आपके पास आया। Satan wanted to kill, steal and destroy. शैतान जो है चाहता था कि आपको चुराए, नाश करे और But the Lord came पर परमेश्वर आया and restored the sonship. और उसने जो बेटे होने का जो आपको नाम दिया उस चीज को फिर से लौटाया। And Satan has no power, authority over your life. और शैतान को कोई भी आपके ऊपर अधिकार Only नहीं the है। Father has authority over your life. जब पिता परमेश्वर को आपके ऊपर अधिकार है। And what is amazing thing? और सबसे बड़ी और अच्छी बात The ये है Father lives in us. कि पिता परमेश्वर है, इवन आपके अंदर जीता We है। are His special, chosen vessels. इवन हम चुने हुए बर्तन है To परमेश्वर display के His लिए, glory and honor. उसकी महिमा और उसके सम्मान को प्रकट करने के लिए। So I believe in this place. और सिस्टर ये विश्वास करती है इस जगह पे There will be time of breakthrough. इवन इस जगह में ब्रेक थ्रू होने वाला है। There's a time, like Ecclesiastes 3:11. There's a time under heaven. Everything. There's a time and a season. इवन हर चीज के लिए एक समय है और एक मौसम है। And we are under open heavens. और हम खुले स्वर्ग के नीचे हैं। And the Father, और पिता परमेश्वर enjoys your worship. इवन जब हम पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं तो प्रसन्न होता है हमारी आराधना He में। longs to hear your voice. परमेश्वर चाहता है कि वो आपकी आवाज को सुने, वो रुकता है आपकी आवाज को सुनने के So from लिए। now onwards, आज के बाद your sons आप जो उसके बेटे हो, will respond to His voice जब परमेश्वर आपसे बातें करता है तो आप उससे बातें करो and make a decision और एक निर्णय करो। that everything in my life, हर एक चीज जो मेरे जीवन में है, I will display your glory. हर एक चीज के द्वारा मैं आपको महिमा दिखाऊंगा। Your life will be full of blessings. आपका जो जीवन है आशीष से भरा होगा। Because now क्योंकि अब you have not, the blessings are going to chase you. इनमें जो आशीष है आपके पीछे भागेंगे, आपको ढूंढते ढूंढते। Yeah, because you are walking with the Father. क्योंकि आप परमेश्वर के साथ चल You are रहे हो, hearing Him आप उसको सुन रहे हो and you're doing what He says. और आप वो कर रहे हैं जो वो चाहता है कि आप करें। So the Lord is saying, तो परमेश्वर कह रहा है, sons, मेरे बेटे please the Father. मुझे प्रसन्न कर लो, Don't please man. मनुष्य को प्रसन्न मत करो। Man cannot give you anything. लोग आपको कुछ नहीं दे सकते। Don't trust earthly father. एवं अपने खुद के पिता जिसके द्वारा आपका जन्म हुआ उस पर भी विश्वास मत करो। Don't trust earthly father's inheritance also. एवं जो भी आपको वंशाली जो भी आपको मिलने वाला आपके पिता के द्वारा Because the heavenly उस father, चीज पर भी आप विश्वास मत करो, because the heavenly father क्योंकि आपका स्वर्ग के पिता is the richest daddy. एमेन वो सबसे अमीर पापा है आपका, And he already has given you. और उसने दिया भी है आपको सब कुछ। He in coming days आने वाले दिनों में will open your eyes वो आपकी आंखों को खोल देगा, to see his inheritance. जो आपके लिए रखा है उन चीजों को दिखाएगा। You're going to experience
आप अनुभव करने वाले हो massive breakthrough बड़े बड़े ब्रेक थ्रू from the Father. परमेश्वर के द्वारा। So the man will not take any credit. तो मनुष्य जो है कुछ भी अपने लिए नहीं लेगा, All glory will go to the Father. सारी महिमा परमेश्वर को ही मिलेगा। And many will enter His kingdom. और बहुत बहुत सारे लोग परमेश्वर का राज्य में Because आएंगे। each one of you, हर जो यहाँ पे लोग हैं, God wants to do miracles and testimonies after testimony. Yeah, He's created your life as a testimony. परमेश्वर ने आपको बनाया है कि आप उसकी महिमा के लिए खड़े हो, And signs and wonders will follow you. और चिन्ह चमत्कार आपके पीछे हो लेंगे। You don't need to ask for sign and wonder. आपको चिन्ह और चमत्कार के लिए पूछने की जरूरत We नहीं walk with है। the Father intimacy, जब हम पिता परमेश्वर के साथ एक होके सहमत होके चलते हैं enjoy His love, और हम उसके प्यार को हमें अनुभव करते हैं, worship His love, उसकी आराधना करते हैं, experience the transformation, experience the transformation of His love, और जब हम अपने अंदर इमेन परमेश्वर के प्यार की बदलाव को महसूस करते हैं, His glory is you're going to shine. आप चमकने वाले हो, Because God is waiting the sons to manifest in the world. इमेन क्योंकि परमेश्वर रुका हुआ है कि उसके जो बेटे हैं इस संसार में प्रकट हो, उसकी महिमा को प्रकट He करें। wants to do miracle in your life, परमेश्वर चमत्कार आपके जीवन में करना चाहता है, but more He's interested the others who don't know Jesus. इमेन पर उससे भी ज्यादा वो दिलचस्पी रखता है कि जो लोग उसको नहीं जानते उनके जीवन में आपके द्वारा इमेन चमत्कार करें। Because as sons, और बेटे होने के नाते, if we take the right position, और हम सही स्थान लेते हैं बेटे होने के नाते, as I said, the blessings will flow, आशीष तो आएंगे which others will be able to see. जो दूसरे जो लोग हैं वो So the देखेंगे Father is glorified. परमेश्वर पिता की महिमा हो So चुका है। others will want to know whom you are serving. तो You have to serve Jesus. तो जब वो देखेंगे कि आपके जीवन में आशीष आया है तो आपको आकर पूछेंगे कि कौन है ये, आपको आशीष कैसा मिला है। You know there are people who are observing you आपको पता है बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं with a magnifying glass. बहुत ही ध्यान और चौकन्ना होकर देख रहे हैं, Yeah, because they have seen you as a weaker vessel. क्योंकि हमेशा उन्होंने आपको एक कमजोर बर्तन जैसा देखा है। But God पर परमेश्वर is your strength. आपका सामर्थ्य है, Because God आपका lives in शक्ति you. है, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर जीता है And you are a son. और आप एक बेटे हो। And a son is full of power and strength. आमेन। और जो बेटा है पूरा सामर्थ और पूरे शक्ति से भरा हुआ है। Josh, there was Daniel, Abraham, Joshua, all were mighty servants of God. हम देखते हैं बाइबल में जो अब्राहम था, जो योशुआ था और बहुत सारे लोग थे, बहुत महान परमेश्वर के Even सेवक with थे। Jesus was with the disciples. He could. यीशु मसीह के जो शिष्य भी थे बहुत ही महान और सामर्थवान But थे। the best part और सबसे बेहतर चीज है that the Jesus himself, the Lion of Judah, is living in you. आमेन। सबसे बेहतर चीज वो है कि जो यहूदा का जो शेर है आपके अंदर जी रहा है। So you are in a victory position. आमेन। You are in a victory position. आमेन। तो आप विजय के आपको परमेश्वर ने विजय दिया है। So thanksgiving is a victory prayer. आमेन। जब परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आमेन, ये विजय की घोषणा आप When you करते worship हो। is victory. जब आप आराधना करते हो परमेश्वर की विजय करते हो आप। When you walk in love is victory. जब आप प्रेम में चलते हो ये परमेश्वर के लिए एक विजय When you है। forgive someone is victory. जब आप किसी को क्षमा करते हो आप परमेश्वर के विजय में चलते हो। Okay? So when you reach out the poor is victory. जब आप गरीब लोग तक पहुंचते हैं आमेन, तो वो परमेश्वर के लिए एक विजय When you है। reach out the orphans, there's victory. आमेन। जो अनाथ लोग हैं जब उन तक पहुंचते हैं तो परमेश्वर को Because की विजय मिलता है। sons are called to rule and be victorious. आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे को बुलाया है राज करने के लिए और विजय पाने के Not लिए। only on Sunday service. जो संडे सभा को नहीं, All of your life. अपनी पूरी जिंदगी The में Lord says, I'm your shepherd. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ। You know, you lack nothing. Every provision will come from the Father. परमेश्वर कहता है कि मैं चरवाहा हूँ और तुम्हें कभी भी कोई भी घटी नहीं So he होगा। says, surely goodness and mercy will follow all days of your life. आमेन। परमेश्वर कहता है वाकई में आमेन, मेरी भलाई और मेरी दया तुम्हारे जीवन में आने वाला है हमेशा हमेशा The के Lord is लिए। saying, please do not worry. तो परमेश्वर कहता है चिंता मत करो। You know why he's saying do not worry? क्यों कह रहा है परमेश्वर चिंता मत करो? Because when you worry and anxious, क्योंकि जब आप चिंता में आते हो और एकदम आप सोच में आते हो, you are gripped with fear. आपके अंदर डर आता है। But when you rest in His presence, पर जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आराम लेते and हो you know the Lord is in control और of everything, आपको पता है कि परमेश्वर हर एक चीज पर है, नियंत्रण ले रहा है, so He is giving you the peace
परमेश्वर ने आपको शांति दिया है, It surpasses all understanding. वो शांति जो हर एक चीज, जो हर एक समझ के बयान है। And when you stay in that peace, that position, और जब आप परमेश्वर की शांति में रहते you have हो, already won the victory. आपने विजय को पा लिया है। And the miracle, that is the time the miracle will happen. और वो क्षण में परमेश्वर का चमत्कार So होने वाला Lord is है। saying, do not fear, तो परमेश्वर कहता है डर मत, for I have adopted you. क्योंकि मैंने तुझे अपने परिवार में ग्रहण In किया my है, स्वीकारा kingdom, है, in my kingdom. मेरे राज में स्वीकारा है। And you are holy, और तू पवित्र है, and you are worthy और तू योग्य है to receive स्वीकार करने के लिए। every gift from the Father. हर एक वरदान जो पिता ने रखा है उस चीज को स्वीकार So करने के लिए योग्य I है। challenge you today और हम आपको चुनौती देते हैं, that make a decision. एक निर्णय करो Let's start walk with the Father. कि तुम परमेश्वर पिता के साथ, एक परमेश्वर के साथ चलो, Take your position अपना स्थान ले लो and reflect His glory. और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करो, Because God is about to do something massive in your family. क्योंकि परमेश्वर आपके परिवारों में कुछ बहुत बड़ा करने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। Because when we walk straight, क्योंकि जब हम सीधा चलते हैं, the blessings follow us. परमेश्वर की जो आशीष हमारे पीछे आती You है। have not to pray for many things. आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं आशीषों के With लिए। His purpose, with God's purpose, जब आप परमेश्वर with God's purpose, जो परमेश्वर की योजना के द्वारा, with His purpose, okay, with God's plan and purpose, जो परमेश्वर की योजना के द्वारा your desires आपकी will जो also be इच्छा है, fulfilled. आपकी इच्छा भी पूरा होने वाला है। So I suggest you all, और सिस्टर आपसे कुछ कहती है, write your spiritual desires in one page and write your material desires in another page. आपकी जो आत्मिक इच्छा है कि आप क्या परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं, एक पेपर पे लिखो, और जो आप चाहते हैं, आमीन, जो चीजों को आप चाहते हो, पैसे या जो भी मटेरियल चीजों को, आमीन, इस संसार में जो भी आपको चाहिए उन चीजों के एक अलग पेपर में लिखो। Our God is a big God. हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है, He is limitless. आमीन, उसको सीमा में बांध नहीं And सकते, sons should be limitless. और हम उसके बेटे होने के नाते हमें भी You सीमा are में here to कोई बांध reflect नहीं His सकता glory. है। आपको की महिमा को प्रकट करना है। So when you prosper, तो जब आप यशस्वी होते, सफल होते हो, His kingdom is expanded. उस परमेश्वर का राज्य जो है वो बढ़ता है। I did this the beginning of the year, और सिस्टर ने ये साल की शुरुआत में ये चीज की है जो अभी आपको and कहा। I've seen most of the points are I check mark. The desires have come to pass. जो भी सिस्टर का इच्छा था, जो उसने इस पेपर में लिखा, आत्मिक में हो, शारीरिक में हो, हर एक बहुत सारी चीज मिल चुकी है सिस्टर को, इच्छा पूरा हो चुका है। Because you're worthy to receive every gift from the Father, and you think big and dream big for the Father. क्योंकि आप योग्य हो हर एक चीज पिता से मिलने के लिए, और आप बड़े सोचो और बड़े स्वप्न, बड़ा दर्शन देखो, Because you are the head and not the tail. क्योंकि आप सर हो और दुम नहीं। Abraham blessings. अब्राहम की आशीष है, Are we experiencing? क्या हमें अनुभव कर रहे हैं? We want to experience. हम अनुभव करना चाहते हैं, Now is the time. और अब वो समय है, It's a new season. ये एक नया मौसम है। For many of you here, बहुत सारे लोगों के लिए जो यहाँ पे है, you are called आप बुलाए गए हो to preach the good news. परमेश्वर के वचन को प्रचार करने Mighty के लिए। evangelists are sitting here. यहाँ पे बहुत सारे सुसमाचारक बैठे Many हुए हैं, prophets are sitting here. बहुत सारे भविष्यवाणी के लोग बैठे हुए There is the हैं, pastors here. यहाँ बहुत सारे पास्टर लोग बैठे There are हैं, many people who are apostles here. यहाँ पे बहुत सारे प्रेरित बैठे हुए Teachers of हैं, the word of God. जो वचन के शिक्षक है वो यहाँ पे बैठे It हैं। is a time, ये समय है, and in unity एकता में we work for the kingdom. हम परमेश्वर के राज के लिए एक होके काम We करेंगे। we don't know any lives here. And we don't know any lives here. हम Abundant life, new life, our Shalom Tabernacle. ओके, हम यहाँ पे कोई कलीसिया को नहीं जानते हैं, We know only one kingdom. हम एक के राज्य को जानते So हैं, you are the kingdom of the Father. You are a son, आमीन, और वो परमेश्वर का and राज। you live for Jesus. हम परमेश्वर के बेटे हैं और हम परमेश्वर के लिए The जीते banner हैं। over you is love. आमीन, जो आपके ऊपर जो मिनिस्ट्री का जो है ना, फॉर एग्जाम्पल बाम ऑफ गिलेड बोलो या शालोम टबरनेकल को बोलो, आमीन, हमारा एक ही राज है और वो राज का नाम है प्रेम। हालेलुया। So walk in the love of Jesus. तो हम परमेश्वर के प्रेम में चलेंगे।